الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. ڈگری فرسٹ ایئر فرسٹ سمیسٹر کا یہ ویڈیو ہے. آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 2 پڑھیں گے. اور اس لیسن میں ہم کو کیا سکھایا جائے گا، سب سے پہلے ہم وہ سمجھیں گے، اس کے بعد پھر لیسن شروع کریں گے. لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ گائیڈ اور اسٹڈی مٹیریل آپ سب سے پہلے حاصل کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور سارے ویڈیوز کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ وہاں سے سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے پورے ساتھیوں تک ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ عربی کا ہر اسٹوڈنٹ عربک میں 100% مارکس حاصل کر سکے. اور ایک بات یہ کہنا ہے، انشاءاللہ ڈگری فرسٹ سمیسٹر کہ انشاءاللہ ایگزام سے پہلے آن لائن کلاسز بھی لوں گا. اگر آپ مناسب سمجھے، آپ جوائن کرنا چاہیں تو جوائن کریے. دیکھیے، اس لیسن میں ہم مندرجہ ذیل چیزیں سیکھیں گے، یعنی اس سبق میں ہم یہ چیزیں سیکھیں گے. نمبر 1، لیسا. عربی کا ایک ورڈ ہے لیسا، جس کے معنی ہے نہیں. نہیں کے معنی کسی سینٹینس میں پیدا کرنا ہے، بنانا ہے، تو اس وقت لیسا کا لفظ استعمال کر دے. یہ بھی جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. یعنی جو لیسا کا ورڈ ہے یہ نومینل سینٹینس، اس کو اردو میں کہتے ہیں جملے اسمیہ. جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عربک کا ایک جملے اسمیہ ہے، یعنی نومینل سینٹینس ہے، البیت جدید. البیت مانے گھر، جدید مانے نیا. پورے میننگ ہو گئے، گھر نیا ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں گھر نیا ہے. یہ ایک نومینل سینٹینس ہے. اب ہم اس کے اندر نہیں کے معنی پیدا کرنا ہے تو اس وقت لیسا کا استعمال کریں گے. جیسے لیس البیت جدیدا، لیس البیت جدیدا. یہاں پہ دیکھیں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، آپ اس پہ غور کریں. فرسٹ سینٹنس لیسا سے پہلے دیکھیے البیت جدید، اس کو کہتے ہیں مبتدا فرسٹ ورڈ کو، اور سیکنڈ ورڈ کو کہتے ہیں خبر. انگلش میں فرسٹ ورڈ کو سبجیکٹ اور سیکنڈ ورڈ کو پریڈیکیٹ. فرسٹ ورڈ کے آخر میں پیش ہے اور سیکنڈ ورڈ کے آخر میں بھی پیش ہے، لیکن 2 پیش ہے یہاں پہ. ٹھیک، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. لیکن جب اس سینٹینس سے پہلے لیسا آئے گا تو اس وقت تھوڑی سی تبدیلی ہوگی. کیا تبدیلی ہوگی؟ سبجیکٹ کے اوپر تو پیش ویسے ہی باقی رہے گا، لیکن پریڈیکیٹ یعنی خبر کے اوپر پیش 2 پیش نہیں رہیں گے، بلکہ 2 زبر آئے گا. دیکھیے جدیدن، اور 2 زبر جہاں پر بھی آتا ہے وہاں پہ الف آتا ہے. شاید بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے. لیس البیت جدیدن، بات سمجھ میں آ چکی ہے. اس لیسن میں ہم لیسا کو پڑھیں گے. لیسا کے معنی ہے نہیں کے معنی. لیسا سینٹینس میں نہیں کے معنی پیدا کرتا ہے. جیسے البیت جدید، اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے لیس البیت جدیدا، گھر نیا نہیں ہے. اور اس میں اور ایک تبدیلی کیا ہوگی؟ سبجیکٹ کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن پریڈیکیٹ کے اندر یعنی خبر کے اندر جو پیش تھا، پہلے 2 پیش تھے، وہ 2 پیش ہٹ کر 2 زبر آ جائیں. ٹھیک ہے. نوٹ، لیسا داخل ہونے کے بعد مبتدا کو اسم لیسا اور خبر کو خبر لیسا کہتے ہیں. یہ عربی کی ایک مثال ہے، عربی کا ایک رول ہے. اس کو کہتے ہیں مبتدا اور اس کو کہتے ہیں خبر، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا. لیکن جب لیسا داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت کہیں گے یہ کس کا مبتدا ہے؟ لیسا کا اسم ہے. یہ لیسا کا اسم ہے اور یہ لیسا کی خبر ہے. خبر نہیں، خبر ہے. ٹھیک، چلیے. لیسا کی خبر پر حرف جر با داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خبر مجرور ہوتی ہے. ہم خبر کو بھی کے بغیر بھی استعمال کرتے ہیں، اس صورت میں خبر منصوب ہوگی. خیر یہ اتنا ضروری نہیں ہے. لیسا صرف مذکر اور واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث کے لیے لیست استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ غور کریں، ابھی ہم یہ مثال پڑھے تھے البیت جدید، یہاں پہ ہم لیسا داخل کریں. کیوں؟ یہ البیت میل ہے
मैस्कुलाइन है, मुजक्कर है, इस वजह से लैसा का लफ्ज इस्तेमाल करें। लेकिन फर्स्ट वर्ड यानी मुब्तदा सब्जेक्ट फेमिनिन हो तो उस वक्त लैसा इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि लंबी ता बढ़ा दी जाएंगी, लैसत पढ़ा जाएगा। जैसे ज़ैनब मरीज़तुन, ज़ैनब मुब्तदा, मरीज़तुन खबर, यानी ज़ैनब सब्जेक्ट, मरीज़तुन प्रीडिकेट। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट वर्ड है ज़ैनब फेमिनिन है, तो जब हम लैसा दाखिल करेंगे तो उस वक्त लैसा नहीं पढ़ेंगे बल्कि लैसत ता के साथ पढ़ेंगे। ता लंबी ता का मतलब है वो फेमिनिन है। लैसत ज़ैनबु बिमरीज़तिन, बिमरीज़तिन। कभी कभार प्रीडिकेट के ऊपर बा दाखिल हो जाता है। शायद बात समझ में आ चुकी है। अस्सय्यारतु खदीमतुन, अस्सय्यारतु मुब्तदा, खदीमतुन खबर। अस्सय्यारतु मुब्तदा, खदीमतुन खबर, यानी अस्सय्यारतु सब्जेक्ट, खदीमतुन प्रीडिकेट। जब हम इसको लैसा के साथ इस्तेमाल करेंगे तो लैसा नहीं बल्कि लैसत पढ़ेंगे। क्यों? अस्सय्यारतु फेमिनिन है, इस वजह से फेमिनिन, लैसत भी फेमिनिन इस्तेमाल करेंगे। लैसत अस्सय्यारतु बिखदीमतिन। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो इस लेसन में पढ़ना है, लेकिन सबसे अहम चीज ये है, लईसा दाखिल करना है। तो लईसा दाखिल करने के बाद मीनिंग में तब्दीली होंगी और उस सेंटेंस में भी तब्दीली होगी। एराब में, जबर जेर पेश में भी तब्दीली होगी। क्या तब्दीली होंगी वो अभी आप देख चुके हैं। मीनिंग में तब्दीली नहीं के माने हो जाएंगे, और एराब में तब्दीली प्रीडिकेट यानी जो खबर है उसके ऊपर दो जबर आ जाएंगे। चलिए, ये है इंग्लिश में, वही जो अभी हम उर्दू में समझे थे वही है इंग्लिश में। यहां से देखिए, यहां से वो लेसन है। तो आपसे गुजारिश है ये आप खुद पढ़ लें, या अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा वक्त हो जाएगा। आप खुद पढ़ लें, यहाँ पे उर्दू में भी है, इसका ट्रांसलेशन उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। या आपके उस्ताद मोहतरम आपको पढ़ा देंगे इंशाल्लाह क्लास में। जी, यहां से देखिए एक्सरसाइज है। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस है और इस तरफ आंसर्स है। इंशाल्लाह इसकी जो स्टडी मटेरियल रहेगी, ये क्वेश्चंस और आंसर, इसका प्रोनाउंसिएशन रोमन स्क्रिप्ट ने और उर्दू, रोमन उर्दू ट्रांसलेशन रहेगा और इंग्लिश भी ट्रांसलेशन रहेगा। अगर ये गाइड तैयार ना हो तो आप स्टडी मटेरियल जरूर लें, इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, मिन अइना हिशाम, हिशाम कहां से है, कहां का रहने वाला है? आंसर है देखिए, हिशाम मिनल विलायात अल मुत्तहिदा, विलायत मुत्तहिदा का रहने वाला है। मिन अय्यि मदीनतिन हुआ, वो किस सिटी से है? हुआ मिन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क का रहने वाला है। कम उख्तन लहू, उसके कितने बहनें हैं? लहू सलासु अखवातिन, उसके तीन बहनें हैं। अब मुहंदिसुन अबू का, क्या आपके अब्बू इंजीनियर है? अभी लईसा बिमुहंदिसिन, मेरे वालिद इंजीनियर नहीं है। अब मुदर्रिसुन अंता, क्या आप टीचर हो? ला अना मुहंदिसुन, नहीं मैं इंजीनियर हूं, टीचर नहीं हूं। अजदीदतुन सय्यारतु का, क्या आपकी कार नई है? क्या आपकी कार नई है? क्या नई चीज आपकी कार है, ये भी है तर्जुमा। नाम सय्यारती जदीदतुन, हाँ मेरी कार नई है। उसके बाद देखिए, उदखुल लैसा अलल जुमलिल आतिया, इंसर्ट लैसा इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, इन सेंटेंस से पहले लैसा यूज करिए, लैसा दाखिल करके एराब लगाइए। बहुत आसान है, हम लेसन के शुरू में भी पढ़े थे। ये सेंटेंस जब खाली रहेगा
तो फर्स्ट वर्ड पे पेश रहेगा और सेकंड पे दो पेश रहेंगे। लेकिन जब लैसा दाखिल हो जाएगा तो फर्स्ट वर्ड वैसे ही रहेगा, सेकेंड वर्ड पे दो जबर आ जाएंगे। अगर दो पेश है तो दो जबर, एक जबर एक पेश है तो एक जबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। अल बाब मुगलकुन लैसल बाब मुगलकन। यहां पे देखिए लास्ट में फर्स्ट वर्ड तो चेंज नहीं होगा, सेकेंड वर्ड के लास्ट में दो पेश है, लेकिन लैसा दाखिल होने के बाद दो जबर, और दो जबर जहां पे आता है उसके साथ अलिफ आता है। अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अल बाबु मुगलकुन के माने दरवाजा बंद है, इसका तर्जुमा होगा दरवाजा बंद नहीं है। पानी ठंडा है। लैसल माउ बारिदन, पानी ठंडा नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड तो सेम है, सेकेंड वर्ड पे दो पेश है। यहाँ देखिए लैसा जब दाखिल होगा तो पहले वर्ड पे कोई तब्दीली नहीं होगी। सेकेंड वर्ड यहाँ पे दो पेश थे तो दो पेश हटा के दो जबर आ जाएंगे, और दो जबर जहां पर आएगा अलिफ आएगा वहां पे। हिशामुन मरीजुन, हिशाम एक लड़के का नाम है, मरीज माने बीमार, हिशाम बीमार है। लैसा हिशामुन मरीजन, हिशाम बीमार नहीं है। यहाँ पे देखिए हिशाम तो वैसे ही है जैसे पहले था, लैसा दाखिल होने के बाद भी वैसे ही है। लेकिन मरीजन, यहाँ पे मरीजुन पे दो पेश थे, लैसा दाखिल होने के बाद मरीजन पे दो पेश की जगह दो जबर आएगा, और दो जबर जहां पे आएगा अलिफ आएगा वहां पे। अभी नाइमुन, मेरे वालिद सो रहे हैं। लैसा दाखिल करने के बाद लैसा अभी नाइमन, मेरे वालिद नहीं सो रहे हैं। देखिए नाइमन, यहाँ पे नाइमुन पे पेश है, यहाँ पर नाइमन पर जबर आ गया, दो जबर के साथ अलिफ आएगा। अदरसु साबुन, सबक मुश्किल है। लैसा दरसु साबन, सबक मुश्किल नहीं है। अल मस्जिद करीबुन, मस्जिद करीब है। लैसल मस्जिद करीबन, मस्जिद करीब नहीं है। अतिफ्लु जवान, बच्चा भूखा है। लैस अतिफ्लु जवान, बच्चा भूखा नहीं है। हुआ ताजिरुन, वो बिजनेसमैन है। हुआ लैसा ताजिरन, या लैसा हुआ ताजिरन, वो बिजनेसमैन नहीं है। शायद आपको ये बात समझ में आ चुकी है। कव्विन जुमलन मुस्तामिलन लिल कलिमातिल आतिया, फॉर्म सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन लिखे हुए वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करना है। देखिए अल माउ, पानी। अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अद्दरसु, लेसन। अद्दरसु, यहाँ पे देखिए अद्दरसु सहलुन, सबक आसान है। अतिफ्लु, लड़का छोटा बच्चा। अतिफ्लु नाइमुन, बच्चा सो रहा है। अल मस्जिदु, अल मस्जिदु कबीरुन, मस्जिद बड़ी है। अल बाबू, डोर। अल बाबू मफ्तूहुन, डोर खुला हुआ है। अल अखु, भाई। अल अखु मुज्तहिदुन, भाई मेहनती है। उसके बाद और एक बैठे देखिए, और एक एक्सरसाइज है। उक्तुब मानी अल कलिमात तालिया, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, इन वर्ड्स की मीनिंग लिखना है। लिकाउन, इज्तिमा, मिलना। जय्यिदुन, गुड। तय्यिब। जैबुन, मिखबाउन, पॉकेट। जे पॉकेट या कोई भी पॉकेट। नहरुन, नहर। बरीदतुन, टेलीग्राम। बरीदतुन, टेलीग्राम। मसरिफुन, इसको अरबिक में बैंक कहते हैं, इंग्लिश में बैंक। मकतबुल बरीद, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद देखिए और एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5। अल मुफरद वल जमा, सिंगुलर एंड प्लूरल। नहरुन, अभी जो वर्ड्स मीनिंग है ना उसी के लिए। नहरुन सिंगुलर है, इसका प्लूरल है अनहार। जैबुन, जेब। जुयूब, इसका प्लूरल है। बरीदतुन, टेलीग्राम, इसकी जमा आती है बरीदात। मसरिफुन, इसकी जमा है मसारिफ, बैंक। अखुन, भाई। इखवतुन, भाइयां। ठीक है, उसके बाद शायद और एक है, नहीं कंटिन्यू है। उख्तुन, बहन। अखवात,
बहनें, मुस्लिमुन मुस्लिमूना, बिंतुन लड़की, बनात लड़कियां, इब्नुन बेटा, अबना बेटे, इस्मुन नाम, अस्मा बहुत से नाम। उसके बाद अपोजिट वर्ड्स हैं, या अपोजिट वर्ड भी याद रखें, एग्जाम में जरूर आएंगे। नंबर 1 है, देखिए जय्यिद, इसका अपोजिट है खबीहुन। जय्यिद माने अच्छा, खबीह माने बुरा। नंबर 2 अबुन, उम्मुन बाप माँ, करीबुन नजदीक, बाईदुन इसका अपोजिट है बाईद दूर, कबीरुन बड़ा, इसका अपोजिट है सगीरुन, जदीदुन नया, इसका अपोजिट है खदीमुन, मसरूरुन खुश, इसका अपोजिट है महजूनुन गमजदा। तो ये था आपका सेकेंड यूनिट का लेसन नंबर 2। आपसे गुजारिश है आप खुद ये वीडियोस देखें और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें, और अच्छी लगे तो कमेंट में लिखें, या कुछ गलती है तब भी कमेंट में लिखें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।